At around 3:30 a.m. on Friday morning, a terrible accident involving a luxury private bus and a motorbike occurred in Kurnool district of Andhra Pradesh, in which over 20 passengers were reportedly charred to death, leaving several others injured. The luxury bus carrying 43 passengers was travelling from Hyderabad to Bengaluru and caught fire near Chinnatekur village in Kurnool. As of now, several theories are swirling around the reasons which caused the accident. According to one, the biker, identified as 23-year-old Sivakumar, a resident of Kurnool, was flung to the roadside and died instantly. His two-wheeler was meanwhile trapped beneath the bus and was dragged along for nearly 300 meters. According to the police, petrol leaking from the bike's tank and possibly from the bus's fuel tank, combined with friction sparks from the road, ignited a fire that rapidly gutted the bus. According to P. Venkataramana, in charge, Director General, Andhra Pradesh State Disaster Response and Fire Services, the mishap occurred due to overspeed and maybe negligence of the driver. The bus went up in flames near Ullandakonda village, 18 kilometers away from Kurnool. In all, 43 persons were in the ill-fated bus. Prime Minister Narendra Modi expressed grief over the deaths in the accident and announced an ex gratia of 2 lakh rupees from PMNRF to the next of the kin of each deceased and 50,000 for the injured, and said as follows: extremely saddened by the loss of life due to a mishap in Kurnool district of Andhra Pradesh. Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu also extended his condolences and said as follows: I am shocked to learn about the devastating bus fire accident near Chinnatekur village in Kurnool district. My heartfelt condolences go out to the families of those who have lost their loved ones. Meanwhile, even as helplines have been activated, some of the names of the deceased in the accident include J. Philomena Baby, Aswin Reddy, R. Gabandhopadhyay, M. Satyanarayana, among several others. Even Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar has responded to the Kurnool bus tragedy. Shivakumar said, I am directing our Transport Minister and Home Minister to probe this thoroughly. It seems some negligence or mischief has occurred. It is a very surprising, tragic incident. We should be very cautious. It is a lesson to all of us. I think an inquiry has to be conducted. Any state, all the states will have to work out together on the safety measures of this. We feel very sorry. Government also should be very cautious on this issue. Let's listen in to a survivor's account of this terrible, heinous accident, and then I go to my colleague to speak more on the matter. I'm traveling from Hyderabad to Bengaluru. Around 3:20, I got wake up, and suddenly I have seen the bus front. It was fire was attacked. So I'm not sure what was happened, but all of a sudden fire was coming inside. So then after I realized that, and I went to back side of emergency exit, and I tried to break the glass, but I was unable to break the glass, and whoever behind me, he break the glass, and we have escaped almost 15 members. Fire team has come after almost 45 minutes. No one is there, so we were helpless there. Imagine the door is jammed, the windows are jammed, and fire safety only arrives after 45 minutes. If you go by the survivor's account, this is a truth which actually happens and unfolds whenever we have mishaps like this. And now, Noor Mohammed, who is my colleague, is live to tell us about the incident. Noor, शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। बताइए कि अब तक मरने वालों की संख्या 20 तक हम कह रहे हैं, बढ़ गई है या उतनी ही है? देखिए, बस कल रात हैदराबाद से निकली थी बेंगलुरु जाने के लिए। ये पूरे
44 मेंबर से बस भरी हुई थी, जिनमें से 2 ड्राइवर है और जो लगातार जो अभी तक जो आधिकारिक तौर पर जो खबरें आ रही हैं उनमें से 19 पैसेंजर की मौत हुई है। ये एक जो बाइकर था। देखिए यहाँ सबसे बड़ी हैरत वाली बात यह है कि बाइकर का हादसा बस के हादसे से कोई लेना देना नहीं है। बाइकर ऑलरेडी वो हादसे का शिकार हुआ था और उसकी बाइक रोड पर पड़ी हुई थी और बाइकर जो शिव कुमार जो बताया जा रहा है वो उस रोड के साइड में पड़ा हुआ था जो मर चुका था। ये 110 स्पीड से जो बस चल रही थी वो अचानक बाइक के ऊपर चल जाती है और बाइक को घिसटते हुए आगे जाने के बाद उसमें बाइक के अंदर जो पेट्रोल था उसकी वजह से फायर हुआ था। उसके बाद देखते ही देखते ये बस पूरी तरह आग में आ जाती है। और दूसरी बात, जहाँ पर यह हादसा होने के बाद जो अपोजिट से यानी बेंगलुरु की तरफ से जो बसें हैदराबाद आ रही थी उनमें से कुछ लोग पैसेंजर जो ड्राइवर थे वो बाज़ाब्ता टोल अधिकारियों को अलर्ट भी किया था कि आगे एक हादसा हुआ है, जो लाश रोड पर पड़ी हुई है और 2 व्हीलर जो व्हीकल है वो भी रोड पर पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे की गलती भी है, जहां पर ये अधिकारी अगर रेस्पॉन्ड करके अगर उस गाड़ी को हटा दिया जाता था तो शायद ये हादसा नहीं होता था। देखिए बाइकर भले ही पहले वो किसी कैसे वो हादसे का शिकार हुआ है ये अभी पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। बस जो थी 110 स्पीड से जो चल रही थी उस बस ने जो टक्कर बाइक को लेकर जो आगे बढ़ा उसमें फायर हुआ है। देखिए सबसे बड़ी गलती यहाँ पे बस की भी माने जानी चाहिए। बस जो थी वो स्टेट कैडर में फिरनी चाहिए, जो सीटिंग से लिहाज से वो बस बनाई गई थी, बाद में उसको मॉडिफाई करके एसी और वॉल्वो बस बनाई गई थी और 3 राज्यों के अंदर ये बस फिरती है। आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक के अंदर कोई भी अधिकारी, कोई भी ऑफिसर इस बस को कहीं भी पकड़ता नहीं है और कहीं भी चेकिंग तक नहीं करता और इसकी फिटनेस और इसका पोल्यूशन तक खत्म हो गया है। कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही भी है। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये बस ट्रैवल करते रही है और आज इन लोगों के जानों का सबसे बड़ा सबब बनी है। देखिए मरने वालों के अंदर कुछ मासूम बच्चे भी थे। देखिए कई परिवार उजड़ चुके हैं इन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से। सरकार अब पूरी तरह जांच कमेटी डाली है और इस पर किसको खाती बनाएगी, क्या वाकई ड्राइवर की गलती बनाएगी या नेशनल जो हाईवे जो देखती है, निगरानी करती है, जो अधिकारी है, क्या उनको जिम्मेदार ठहराएगी, ये रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। मगर फिल वक्त जहां पर हादसा हुआ है तमाम डेड बॉडियों को जो बस के अंदर था उनको रिकवरी कर लिया गया है और पोस्टमार्टम भी चल रहा है। जिस तरह के जो डेड बॉडी वहां पर जो सिचुएशन है, जो जली हुई है, इनका फिल वक्त डीएनए के बाद ही पता चलेगा। ये बताइए नूर मोहम्मद कि उनको अस्पताल जो आसपास अगर फायर सेफ्टी, एक आई विटनेस ने बताया कि 45 मिनट लग गए फायर सेफ्टी को वहाँ पहुँचने में। अब आप भी कह रहे हैं कि पहले से अगर पता होता अगर अधिकारियों को तो वो शायद बाइक को हटा लेते वहाँ से। ये बताइए अस्पताल का क्या हुआ? सुना है गदवाल लेके गए हैं उनको, उसके बारे में थोड़ा तफसील से बताइए, कितना दूर है वो हादसे से? देखिए इस कंपनी के तमाम बसें जो सुबह से लेकर अभी तक हम लोगों ने जांच पड़ताल की है, तमाम अधिकारियों से जांच किया है लगातार। जिस तरह इस हादसे पर हमने जो नज़र बना के रखी है उसके अंदर किसी भी बस के अंदर सेफ्टी नहीं किया। भले ही आज जो हादसा हुआ है उस बस की बात नहीं था, हैदराबाद से और तेलंगाना से कई इलाकों में जो बस ट्रैवल करते हैं उनकी कोई भी सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं है। देखिए हादसा होने के बाद बाइक को बस घिसट कर लेके जाती है, उसके बाद जो डोर का जो मेन केबल है वो कट जाता है। कहीं ना कहीं बस के जो तमाम रास्ते वो तो बंद हो चुके हैं। बस के अंदर किसी भी तरह का सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं है। वहाँ तक के जो कटर जो होना चाहिए, जो ग्लासेस कट करके इमरजेंसी की हालत में बाहर निकलने की जो कोशिश करनी होती है वो कटर तक इस बस के अंदर नहीं। बस पूरी तरह सेफ्टी प्रिकॉशंस के मानंद अगर बात की है तो किसी भी तरह की सेफ्टी नहीं है। बस यहाँ तक के वो एसी बस और वॉल्वो की काबिल तक नहीं थी। इस बस को मॉडिफाई करके इसको एसी बस बना दी गई थी। देखिए हादसा होने के बाद सबसे बड़ी बात यह होती है कि ड्राइवर जो होता है वो अलर्ट करके कहीं ना कहीं पैसेंजर को रेस्क्यू करने की बात या पैसेंजर को बाहर निकालने की बात करता है। मगर इस बस के हादसे ने एक नया ही सवाल खड़ा कर रख दिया है। हादसा होने के बाद दोनों ड्राइवर वहां से चुप से निकल जाते हैं, मगर किसी भी तरह से वहां के जो पैसेंजर थे वो ग्लासेस तोड़ते हैं, ब्रेक ग्लासेस तोड़ के बाहर कूद के अपनी जानें बचाते हैं। जो जानें बचाई है वो भी जख्मी हालत में अभी तक दवाखाने के अंदर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है।